because this uv, its modulus is less than equal to norm of u and norm of v, and it means that inner product is less than equal to norm of u norm of v and greater than equal to minus norm of u norm of v. So this inequality uh, supports that this definition is well defined. This is a well defined definition, right? For well definedness, this quantity should be less than equal to 1. अगर ये less than equal to 1 नहीं है, I mean the modulus of this should be less than equal to 1, then this cosine is not defined. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this divided by this quantity is less than equal to 1, and therefore this cosine is well defined. And therefore, in any vector space, it does not matter which vector. It does not matter if you are talking about vector space with real coordinate or vector space with entry as functions. आप फंक्शनल वेक्टर स्पेसेस की भी बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जो वेक्टर स्पेस जो इनफैक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेसेस हैं, अगर एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेसेस में भी अगर आप इनर प्रोडक्ट और नॉर्म अगर आप डालिए तो आप लेंथ ऑफ ए वेक्टर एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात आप कर सकते हैं. So this is the advantage of this inner product, that you can talk about the angle between two vectors. So now suppose a vector space with first fundamental form is a surface with first fundamental form is given. Suppose E du square plus 2 times F du dv plus G dv square. This is the first fundamental form. This is the first fundamental form of a surface patch sigma, right? Then what is the angle between its two vectors? So what is the angle between? So this is the surface patch, and on this surface patch you have a vector here and you have a vector here, right? So how you talk about the two the angle between the two vectors, right? So you can think of this curve as say curve gamma, and this curve, yeah, or you can take gamma 1 or gamma 2 or gamma and gamma tilde, whatever you want, gamma tilde, right? So its tangent vectors, I mean its velocity vector is, suppose this gamma dot, and this velocity vector is gamma tilde dot, right? It may not be, if it is a regular I mean parameterized by arc length. If this curve, if the two curves are parameterized by arc length, their norm has to be 1, at least at this point. Norm has to be 1, but in general, suppose it may not be parameterized by arc length, so the norm of this gamma dot and gamma tilde dot may not be 1, right? So अगर ये 1 हो जाएगा तब तो सिंपल इन दोनों का इनर प्रोडक्ट ही कोसाइन थीटा हो जाएगा. लेकिन अगर मान लिया जाए कि ऐसा नहीं है तो क्या होगा? What is your gamma dot? So gamma dot, as you know, this gamma t is nothing but this sigma ut vt, and therefore this gamma dot is simply this sigma u dot t and plus sigma v dot t. And similarly you can write for gamma tilde dot, the sigma u sigma u tilde dot and sigma v tilde dot, right? So let us write u tilde dot t and sigma v tilde dot t. Okay, so now what is this gamma dot and gamma
simply sigma maybe you can take for u parameter curve v is equal to constant, and for v parameter curve u is equal to constant, right? So suppose your gamma is just sigma and uv, so u is equal to constant, you are taking u parameter curve. So maybe so it is up to you what you want. So let us suppose that for this gamma curve I am taking u is equal to, so maybe this is because I am taking u is equal to constant, so this is v parameterized curve, and here I am taking u parameterized curve, right? So here this sigma a, and let us take this parameter as t, and similarly this gamma tt is equal to sigma of t, and here may you take b. So then okay, so for the first curve, this ut is equal to a, vt is equal to just t, and for the second curve, this u tilde t is equal to t, and v tilde t is equal to b, राइट? तो इसके लिए जब आप कैलकुलेट करिएगा तो u डॉट की वैल्यू हो जाएगी 0 और v डॉट की वैल्यू हो जाएगी 1. इसी तरीके से u टिल्डा डॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 और v टिल्डा डॉट की वैल्यू हो जाएगी 0. तो अगर ये वैल्यूज आप इसमें रखें तो इन पैरामीट्रिक कर्व के बीच का जो एंगल का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए u डॉट 0 है और v डॉट इज इक्वल टू 1 है, v डॉट इज इक्वल टू 1 है, v डॉट टिल्डा 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से u डॉट 0 है लेकिन v टिल्डा भी 1 है और u टिल्डा डॉट भी 1 है, इसलिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी. सो देयरफॉर यू गेट f. न्यूमिनेटर में केवल आपको f मिलेगा और डिनोमिनेटर में आप देखें तो u डॉट 0 है और u डॉट 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा, और v डॉट इज इक्वल टू 1 है तो स्क्वायर रूट ऑफ g मिलेगा. इसी तरह से यहाँ v टिल्डा डॉट 0 है, v टिल्डा डॉट 0, u टिल्डा डॉट 1 है, तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ eg, स्क्वायर रूट ऑफ eg. तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो पैरामीट्रिक कर्व्स हैं, पैरामीट्रिक कर्व्स के बीच का जो एंगल होता है उसका ये फार्मूला आप लिख सकते हैं f अपॉन स्क्वायर रूट eg. इन पर्टिकुलर जैसे आप सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ले लीजिए, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन में आपने अभी कैलकुलेट किया कि वहाँ पे जो f की वैल्यू 0 है, या मोस्ट ऑफ द सर्फेसेज जो आप देखते हैं, जैसे आप स्फेयर ले लिया, आपने टोरस लिया था, आपने सिलेंडर लिया था, उन सभी में f की वैल्यू 0 आ रहा था. इसका मतलब जो दोनों पैरामीट्रिक कर्व्स हैं वो उनके बीच का एंगल जो है, सो इफ f इज इक्वल टू 0, if f is equal to 0, both the parametric curves are orthogonal to each other. So parametric curves, if f is equal to 0, parametric curves are orthogonally intersect. Orthogonally intersect. Right? Okay. तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कन्फॉर्मल मैप की है. इसको मैं केवल एक डेफिनेशन दे करके और मैं आप लोगों को इसका जो थ्योरम है वो स्टेट कर दे रहा हूँ और इसका प्रूफ आप लोग खुद करेंगे. तो नेक्स्ट जो जस्ट लाइक आइसोमेट्री जो है, आइसोमेट्री में क्या होता है कि नॉर्म प्रिजर्व करता है, नॉर्म प्रिजर्व करता है, और यहाँ पे एंगल प्रिजर्व करेगा. तो एक मान लीजिए कि अगर दो सरफेसेज इस तरह से लिए जाएं तो सपोज S1 and S2 be two surfaces or two surfaces. Now a diffeomorphism f from S1 to S2, this is called conformal. Conformal if the angle between the two curves
is preserved, right? The angle between two curves is preserved, right? This is the definition of conformal map. So if f, a map from S1 to S2 is called conformal if the angle between the curves gamma 1 and gamma 2 is equal to the angle between FO gamma 1 and FO gamma 2. For any curves gamma 1 and gamma 2 on S1, राइट? ये दो अगर आप सरफेसेस ले लीजिए, एक मान लीजिए आपका S1 सरफेस है और दूसरा आपका S2 सरफेस है, और F एक S1 से S2 एक डिफ्यूमॉर्फिज्म है ताकि आप यहाँ से यहाँ भी जा सकें, और इसका इन्वर्स भी स्मूथ है, F भी स्मूथ है और F इन्वर्स भी स्मूथ है। और यहाँ पे कोई कर्व आपने, दो कर्व आपने ले लिया, एक ले लिया आपने गामा 1 और एक ले लिया आपने गामा 2, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है। एक ये टेंजेंट वेक्टर है, एक ये टेंजेंट वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है मान लीजिए थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन गामा 1 डॉट एंड गामा 2 डॉट। और इनके जो इमेजेज आपने लिया है वो इमेजेज इस तरह से है, ये आपका है गामा FO गामा 1 कर्व और ये आपका है FO गामा 2 कर्व, और इन दोनों के टेंजेंट वेक्टर्स हैं FO गामा डॉट और FO गामा 2 डॉट, राइट? FO गामा 1 डॉट और FO गामा 2 डॉट। तो इन दोनों के बीच का एंगल वही है जो इन दोनों के बीच का एंगल। अगर यह सभी कर्व के लिए, कोई भी कर्व, यहाँ पे कोई कर्व ले लीजिए और उसका जो इमेज यहाँ पे बने F के द्वारा, उन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों कर्व के बीच का एंगल। सो इफ दिस इज ट्रू फॉर एवरी कर्व, देन वी से दैट F इज ए कन्फॉर्मल मैप। अभी तक तो आप कर्व के लेंथ की बात कर रहे थे कि अगर कोई भी कर्व यहाँ पे ले लीजिए, उसका इमेज यहाँ पे मिलेगा F के द्वारा, अगर उन दोनों का लेंथ सेम है तो हम दोनों सरफेसेस को आइसोमेट्रिक कहते थे, F इज सेड टू बी आइसोमेट्रिक। अब कर्व के लेंथ से मतलब नहीं है, अब केवल उन कर्व के टेंजेंट वेक्टर से मतलब है, कर्व के टेंजेंट वेक्टर। और ये सभी कर्व के लिए, फॉर एनी कर्व, अब वो कर्व कहाँ जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट वेक्टर के लिए केवल लोकल इंटरप्रिटेशन जरूरी है। तो अगर किसी पॉइंट पे जहाँ वो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर उन दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर वो उनके इमेजेस के बीच के एंगल के इक्वल हो, तो हम उसको कहेंगे वो मैप कन्फॉर्मल मैप है। दैट इज in short you can say the conformal maps preserve the angle. So if F is conformal, then F preserves the angle, right? Yeah. Now the theorem is the main theorem regarding this conformal map, that a diffeomorphism F from S1 to S2 is conformal if for any surface patch sigma 1 on S1 the first fundamental form of sigma 1 and FO sigma 1 are proportional, right? So the main theorem is, मतलब यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए आपने सरफेस पैच जो लिया है वो है सिग्मा 1 और उसके करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आपको मिल गया EFG, राइट? E du स्क्वायर प्लस 2F du dv प्लस G dv स्क्वायर। और यहाँ पे ये सिग्मा 1 पैच है और ये पैच आपको उसी F के साथ कंपोज कर दीजिए, तो ये सरफेस पैच मिल गया FO सिग्मा 1 का इमेज, ठीक है? तो इसका जब फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मिल रहा है E टिल्डा F टिल्डा G टिल्डा। तो दीज टू आर
प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, अगर ये दोनों सेम हो गया तो आइसोमेट्री हो गया, दोनों सेम है तो आइसोमेट्री हो गया, और अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल है मतलब एक इसका दो गुना है, E tilde is equal to 2 times E, F tilde is equal to 2 times F, G tilde is equal to 2 times G, right? So if they are proportional to each other with same proportionality constant, in fact that proportionality constant should depend on the point also. I mean they are functions of F also. So if E tilde, F tilde and G tilde, if these are proportional to E, F, G, right? और ये मान लीजिए कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक लैम्डा एक्स या एफ एक्स ले लीजिए, स्मॉल एफ एक्स ले लीजिए, इसका मतलब ई टिल्डा इज इक्वल टू एफ एक्स ई, एफ टिल्डा इज इक्वल टू एफ एक्स एफ एंड जी टिल्डा इक्वल टू एफ. इफ दिस एफ इज इक्वल टू 1, देन द टू सरफेस पैचेज आर आइसोमेट्रिक टू ईच अदर. तो इस तरह से जो कन्फॉर्मल क्लास है that is a generalization of isometry class. So every isometry is conformal. Every isometry is conformal. कोई भी आइसोमेट्री आप लीजिएगा, अगर ये दोनों फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेम है, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. सो देयरफॉर एवरी आइसोमेट्री इज ए कन्फॉर्मल मैप, राइट? बट एवरी कन्फॉर्मल मैप may not be isometry. Every conformal map may not be. And this function should depend on the point. उस surface के point पे बदलेगा, right? If this is a constant function, suppose fx is equal to say some lambda, but that lambda is not equal to 1. In that case, the two surface patches are said to be homothetic to each other. तो एक word और आता है, एक हो गया isometry, एक हो गया होमोथेटी और तीसरा हो गया कन्फॉर्मल मैप. कन्फॉर्मल मैप में यहाँ fx जो होगा वो एक फंक्शन होगा जो x पे पॉइंट पे डिपेंड करेगा. होमोथिटी में जो fx होगा वो कांस्टेंट होगा हर पॉइंट x के लिए. इट इज कांस्टेंट, मे बी 2, मे बी 1/2, मे बी 9, मे बी 1/9, 1000, 1/10, बट इट इज कांस्टेंट फॉर एवरी x. इट इज नॉट इक्वल टू 1. इट इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि जैसे 1 हो गया it becomes isometry, right? So every isometry is a homothety, every homothety is a conformal map. In that way, every isometry is conformal. There are conformal maps which are not homothety. There are homothety which are not isometry. So these are relations between surfaces. So I'm just stating the result, but I'm not going to prove. The proof is not very difficult. It's almost like isometry, and you must prove. It is given in this Presley book. If there is any problem, you may ask on next turn. So I'm just stating the theorem 5.2, page 108 of Presley book. So a diffeomorphism f from S1 to S2 is conformal if and only if for any surface patch, sigma 1 on S1, the first fundamental form of sigma 1 and FO sigma 1 are proportional. Right? So there are a lot of examples you can see. For instance, when you see the stereographic projection, for surface, so lot of examples you can see. So one example I am again just stating, but the proof is again given in the Presley book. So you see, so if you take a sphere and its stereographic projection, so stereographic projection का नाम कितने लोगों ने सुना है?
यस सर, सुना है। सब लोगों ने सुना है ना स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये सेंटर है स्फेयर का। स्फेयर के सेंटर से होके जाने वाला हम एक प्लेन ले लेते हैं, हाँ एक प्लेन लेते हैं, और हम नॉर्थ पोल से, ये नॉर्थ पोल कह दीजिए, नॉर्थ पोल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं जो इस प्लेन को किसी पॉइंट मान लीजिए P पर मिलता है, और इस स्फेयर को मान लीजिए किसी पॉइंट Q पे काटता है, राइट। तो इस तरीके से हम एक मैप डिफाइन कर सकते हैं जो इस स्फेयर से प्लेन में हो। तो बेसिकली स्फेयर माइनस नॉर्थ पोल, तो दिस इज डिफाइंड ए मैप फ्रॉम दिस स्फेयर S2 माइनस जस्ट a point north pole to this whole plane। मान लीजिए इस प्लेन का नाम हम कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए हम नाम लिख देते हैं पाई, मान लीजिए हम पाई इस प्लेन का नाम दे दे रहे हैं, तो S2 माइनस N2 पाई। और मैप किस तरह से डिफाइंड है, तो इट इज डिफाइंड इन दिस वे दैट यू जस्ट ड्रा a line segment passing through point N and the point to which you want the image। जिस पॉइंट का आप इमेज चाहते हैं उस पॉइंट और नॉर्थ पोल को मिला, आप मान लीजिए सरफेस के इस पॉइंट का इमेज चाहते हैं तो नॉर्थ पोल को उससे ज्वाइन कर दीजिए, और ये लाइन सेगमेंट जहां जाके प्लेन को मिलेगा, जैसे Q को आपने ज्वाइन कर दिया, जहां मिलेगा वही इस Q का इमेज हो जाएगा। तो एज पर द पिक्चर द इमेज ऑफ Q इज इक्वल टू P, राइट। किसी भी पॉइंट का इमेज आप ले सकते हैं। इनफैक्ट अपर हाफ इस हेमीस्फेयर के किसी पॉइंट का इमेज आप लेंगे तो ये जो आप देखिएगा इस प्लेन को ये स्फेयर दो भागों में बांटता है, ठीक है ना। ये जो प्लेन आपने लिया है, इस प्लेन को ये जो स्फेयर है वो दो भागों में बांटता है। एक जो है वो इस डिस्क के बाहर का पोर्शन, एक इस डिस्क के अंदर का पोर्शन, और तीसरा भी पोर्शन कह सकते हैं कि जो बाउंड्री है जो हमने रेड कलर से डिनोट किया है। तो अगर कोई इस अपर हेमीस्फेयर का पॉइंट लेंगे और इस नॉर्थ पोल से आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली वो इस डिस्क के बाहर जाके कहीं ना कहीं मीट करेगा, ठीक है। तो ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट है, Q का इमेज यहाँ P हो जाएगा। कोई भी पॉइंट ले लीजिए उसका इमेज बाहर आ जाएगा। और अगर लोअर हेमीस्फेयर का कोई पॉइंट अगर आप लीजिएगा, इनफैक्ट अगर आप S ले लीजिए तो N को S से ज्वाइन करिएगा तो आपको ये सेंटर मिलेगा। तो इसका मतलब इस S का जो इमेज है वो ये सेंटर ऑफ द डिस्क मिलेगा, सेंटर ऑफ द डिस्क। कि कोई भी दूसरा पॉइंट अगर आप इसके अलावा लीजिए तो आप N को इस पॉइंट से ज्वाइन करिए Q से, और इस प्लेन को वो इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे करेगा P पे, तो ये P इस Q का इमेज हो जाएगा। तो इस तरह से लोअर हेमीस्फेयर का इमेज आप देख सकते हैं इंटीरियर ऑफ द डिस्क होगा, अपर हेमीस्फेयर का इमेज जो है वो एक्सटीरियर ऑफ द डिस्क होगा। और अगर इस ये जो डिस्क है, इस डिस्क के किसी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करें, इसका इमेज अगर आप चाहते हैं, तो जब N को उस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो खुद ही वो पॉइंट अपना इमेज हो जाएगा। सो इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द boundary of the disk, it is the self image through this stereographic projection, right? Now you can write explicitly the formula for this stereographic projection। इसका explicit formula आपकी किताब में भी दिया हुआ है और आप लोग खुद आपने शायद देखा होगा या लिखा होगा। अगर नहीं लिखे होंगे तो कम से कम एक बार जरूर आपको ये कैलकुलेशन करना चाहिए। दिस इज माई सजेशन दैट फाइंड एक्सप्लिसिटली दिस मैप ऐप। अगर नहीं आप लोग निकाल पाएंगे तो आप लोग नेक्स्ट टर्न पे हमें जरूर याद दिलाइएगा, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। सो राइट एक्सप्लिसिटली दिस फार्मूला एफ which maps every point on this sphere minus north pole to a point P on the plane. So in this way, you can also find the inverse, that is the image of a point, any point on this plane to this sphere. तो corresponding way में आप प्लेन के किसी पॉइंट का इमेज स्फेयर पे और स्फेयर के किसी पॉइंट का इमेज प्लेन पे डाल सकते हैं। So in this way you get basically a homeomorphism from this sphere minus one point to the plane. So it's basically a homeomorphism. It's not only homeomorphism, it's going to be a diffeomorphism, and not only diffeomorphism, it's going to be a conformal map. So this F is basically a conformal map. इसका मतलब इस स्फेयर पे कोई भी दो कर्व अगर आप ले लीजिए
उन दोनों कर्व के बीच का जो एंगल होगा, उन दोनों कर्व के बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों कर्व्स का अगर यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग कर्व अगर आप लीजिएगा तो जो भी कर्व्स यहाँ मिलेंगे उन दोनों के बीच का एंगल एग्जैक्टली वही होगा जो इन कर्व के बीच का एंगल होगा। तो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर ऑलरेडी ये थ्योरम है तो और आपके पास ये पैरामीटराइजेशन है, तो इस पैरामीटराइजेशन की मदद से आप फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म निकालें और आप दिखा दें कि जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इस प्लेन का है, प्लेन का फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आपको पता है, स्फीयर का फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आप स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से कैलकुलेट कर लीजिए और आप दिखा दीजिए कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। If the two first fundamental forms are proportional to each other, then the map must be a conformal map. So this is the fact that this stereographic projection is actually a conformal map. तो ये चीजें जो है आपकी किताब में एक ये 5.7 एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5.7 के रूप में दिया गया है। कोई किसी को अगर कंफ्यूजन है इसको समझने में तो आप लोग मदद जरूर ले सकते हैं, और अन्यथा मैं मान के चलूंगा कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप लोग कोशिश करिएगा। जैसे देखिए पहला ही एग्जाम्पल है कि शो दैट एवरी आइसोमेट्री इज ए कन्फॉर्मल मैप एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कन्फॉर्मल मैप दैट इज नॉट एन आइसोमेट्री। आप पहले ये दिखाइए, तो ऑब्वियस है डेफिनेशन से कि कोई भी आइसोमेट्री लेंगे तो कन्फॉर्मल मैप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेम होना है और कन्फॉर्मल में प्रोपोर्शनल होना है। तो अगर वो दोनों सेम है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखाना है कि जो कन्फॉर्मल मैप है लेकिन वो आइसोमेट्री नहीं है, आइसोमेट्री नहीं है। इन पर्टिकुलर आप यहीं पे देख सकते हैं कि ये जो आपको ये जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन मिलेगा ये एक डिफ्यूमॉर्फिज्म होगा, ये आपका कन्फॉर्मल मैप होगा। यहाँ पे जो आप निकालिएगा जब दोनों का फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, तो आप देखेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन ये आइसोमेट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कर्व अगर आप ड्रा करिएगा तो वो कर्व जो है वो चूंकि स्फीयर पे लाई करेगा तो वो बाउंडेड उसका लेंथ होगा, उसका लेंथ हमेशा बाउंडेड होगा विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑन द सरफेस। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस साउथ पोल से होके जाने वाला ग्रेट सर्कल का इमेज अगर आप लीजिए तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा इस सेंटर से होकर के इस पॉइंट तक का ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर ये ग्रेट सर्कल का इमेज आप देखिएगा तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर इसका आप रेडियस देखिएगा तो क्या होगा, this circumference part of you can say the circumference, right? अगर इसका रेडियस 1 है तो ये 2 पाई आर का 1/4 पोर्शन है, यानी π/2 ये आर्क लेंथ होगा। और उसका इमेज जो ये डिस्क का रेडियस है जो कि केवल 1 यूनिट का है, तो यहाँ पे 1 यूनिट है और ये लेंथ पाई यूनिट का है। तो ये आर्क लेंथ सेम होना चाहिए। अगर आइसोमेट्री रहता है तो आर्क लेंथ सेम होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, अगर आप ज्यों-ज्यों आप इस सर्किल को ऊपर बढ़ाएंगे तो अगर इवन आप नॉर्थ पोल के बहुत करीब रहिए, मान लीजिए हम नॉर्थ पोल को ज्वाइन ही हमने कर दिया, जस्ट वेरी क्लोज टू नॉर्थ पोल, as this curve, as this great circle approaches north pole, its length is at most pi, ठीक है ना। साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक का लेंथ पाई होगा, अधिक से अगर नॉर्थ पोल को टच भी करा दीजिए। और इसका इमेज जगह आप कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा, जैसे जैसे ये नॉर्थ ये अपर हेमिस्फीयर की तरफ एक कर्व बढ़ेगा, इसका इमेज ये स्ट्रेट लाइन ही होगा और वो स्ट्रेट लाइन इसी सेंटर से आगे की तरफ जाएगा। और ज्यों-ज्यों आप नॉर्थ पोल की तरफ पहुंचेंगे त्यों-त्यों ये स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी कर्व का S से N तक का जो लेंथ है, वो जो सरफेस पे है, जो स्फीयर पे है, वो अधिक से अधिक पाई हो रहा है। जबकि जैसे हम पाई के पहुंचने, हालांकि एग्जैक्टली पाई तक तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि नॉर्थ पोल आपके इस सरफेस पैच में है नहीं, बट वेरी क्लोज टू नॉर्थ पोल अगर आप रहिए, लेकिन तो भी अधिक से अधिक चूंकि पाई से छोटा ही होगा। नॉर्थ पोल पहुंचने पे पाई हो रहा है तो नॉर्थ पोल के पहले रहेंगे तो वो पाई से छोटा होगा। लेकिन जैसे आप इसका जो इमेज इस पैरामीटराइजेशन के थ्रू मिलेगा, आप देखेंगे वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा और उसका लेंथ बहुत बड़ा होता जाएगा, इन्फिनिटी होता जाएगा। तो इधर की तरफ आपका लेंथ पाई है और उधर की लेंथ इन्फिनिटी हो गया, तो दे कैन नॉट मैच।
तो दैटफॉर इज नॉट एन आइसोमेट्री। तो इस तरह से और भी एग्जांपल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो आइसोमेट्री मैप नहीं है। तो देयर आर कन्फॉर्मल मैप्स व्हिच आर नॉट आइसोमेट्री, सो दिस इज वन एग्जांपल, देयर आर लॉट इन फैक्ट। आप बल्कि स्फीयर पे भी दूसरा पैरामीटराइजेशन आप लेकर के देख सकते हैं, आप सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन लेके और भी बहुत सारे आप पैरामीटराइजेशन लेके देख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद ये एरिया की बात कही गई है, लेकिन एरिया को फिलहाल हम अभी ड्रॉप करेंगे। अगर इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, निश्चित रूप से पड़ेगी, जब हम अगर थ्योरम गाउस थ्योरम की तरफ अगर बढ़ेंगे, गाउस-पुने थ्योरम की तरफ। बट एनीवे, फॉर द मोमेंट लेट अस ड्रॉप दिस एरिया एंड विल कम टू द कर्वेचर ऑफ ए सरफेस। तो द नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा वो है, जैसे फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हमने कैलकुलेट किया है, एग्जैक्टली उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। second fundamental form of a surface. तो सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म मैं आज केवल इसको डिफाइन कर दे रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। तो इसमें है कि अगर मान लीजिए कोई सरफेस पैच आप सिग्मा लेते हैं, मान लीजिए कि सिग्मा कोई सरफेस पैच है जो कि ओपन सबसेट ऑफ यू से R3 में मैप है, ये मान लीजिए सिग्मा है आपका, और आप जानते हैं कि EFG E du स्क्वायर प्लस 2F du dv प्लस G dv स्क्वायर, ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आपके सरफेस का, जहां E जो है आपका सिग्मा u डॉट सिग्मा u है, एंड करस्पॉन्डिंगली यू कैन डिफाइन F एंड G, राइट। नाउ यू नो the sigma u cross sigma v is not equal to 0, and this ensures that the normal vector is defined at each point. The sigma u cross sigma v, this is not equal to 0, right? Sigma u cross sigma v not equal to 0. So this normal is defined at each point of the surface patch. Now what you do, you just take this sigma uu is a vector, right? And you take the inner product of sigma uu with the normal vector, with the unit normal, इसको unit normal कह लेते हैं. And similarly, you calculate the second partial derivative sigma uv dot n, and similarly sigma vu dot n, both are same. So you let us call this as quantity, which call maybe in some book it is written small e, small f, small g, but in Presley book they have written capital L, capital M and capital M. तो यहाँ n में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होता है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल के लिए भी n यूज किया गया है, और ये जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म का थर्ड कंपोनेंट है उसके लिए भी n यूज किया गया है, इसलिए बहुत से आथर EFG लिखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल ज्योमेट्री में इतना ज़्यादा नोटेशंस की जरूरत आपको पड़ती है कि कई बार एक ही लेटर से कई दूसरी चीज़ों को भी डिनोट करना पड़ता है। तो फॉर द मोमेंट लेट अस फिक्स दिस नोटेशन, आई विल गो विद प्रेस्ले नोटेशन। तो यहाँ पे हम n को सेकंड फंडामेंटल फॉर्म का थर्ड कंपोनेंट कहेंगे, और जब हम नॉर्मल की बात कहना होगा तो हम n कैप लिख देंगे। n कैप का मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट। दिस n इज सिग्मा vv डॉट n, ठीक है। तो इस तरह से हम ये 3 अगेन स्केलर फंक्शंस कैलकुलेट करते हैं, एंड यू राइट दिस L du स्क्वायर प्लस m du dv 2 times and plus n dv square. So this quadratic form is called the second fundamental form. This is called, इसको SFF कर लीजिए या FF2 कर लीजिए, FF2 second fundamental form, और इसको FF1 कर लीजिए first fundamental form. This is first fundamental form and this is second fundamental. तो ये सिंपल फार्मूला है, और इस फार्मूले की मदद से कुछ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए या कुछ स्फेयर के लिए, कुछ सरफेसेस के लिए आप लोग एक्सप्लिसिटली सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, आप एक्सप्लिसिटली सेकंड फंडामेंटल फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालिए, नॉर्मल निकालिए और उनके डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो इन पर्टिकुलर आप सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आपकी किताब में दिया भी गया है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। तो फाइंड द सेकंड फंडामेंटल फॉर्म 2 फॉर द फॉलोइंग सरफेसेस। पहला सरफेस आपका हो जाएगा प्लेन, प्लेन के लिए पहले आप निकालिए, स्फेयर के लिए निकालिए, और सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए आप लोग निकालिएगा, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए। तो इन 3 आप लोग चाहें तो सिलेंडर के लिए भी ट्राई कर सकते हैं,
सिलेंडर के लिए ट्राई करिएगा। तो इन 3-4 सरफेसेस के लिए आप लोग सेकंड फंडामेंटल फॉर्म कैलकुलेट करिएगा। नेक्स्ट टर्न पे इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताएंगे और ये बताएंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव एक्सप्रेशन है हाउ इट इज रिलेटेड विद बेसिकली कर्वेचर ऑफ कर्व्स ऑन सरफेसेस। तो इसको हम नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।